Welcome to another episode of Jinnah Institute's Zero Hour. On this show, we attempt to look at issues that need policy attention and intervention. And with the expert we have today, we've picked up another issue that requires attention of both the state and the public. This, by the way, is cryptocurrency. And this is a buzzword that we have heard in both Pakistan and beyond that picked up pace in 2010 and has continued to capture the imagination of both the public and policymakers and so on and so forth ever since both this word and this technology has been brought into the mainstream. Many consider it to be a disruptive technology in the way that it stands to restructure our standard markets, our forex markets, our markets that function on currencies that have been created and have been backed by states. Cryptocurrency is very different in the sense that one of the original objectives was to decentralize this whole the idea of currencies and the idea of money. And this is something that we'll discuss whether this has been achieved or not, or whether cryptocurrency is the answer that many people have seen arise out of problems with forex markets. Today, we have with us Mr. Shoaib Khan, who is an expert in this field, a Pakistani one at that. I know many people assume that there is no such thing as cryptocurrency experts in Pakistan, but that is really not the case. Because we have, for example, Mr. Shoaib Khan has over 10 years or around 10 years of experience in both the crypto and the stock market. He's been an active trader in this time. He's also an educator and a mentor of both cryptocurrency and general trading across Pakistan, and I'll let him speak more about that later. But beyond that, Mr. Shoaib is a man of many talents because he's also a petroleum engineer. He's a master's in crypto finance as well, and he's a University College London alumni in astrophysics as well. Thank you so much, Shoaib, for attending this discussion. We're happy to have you here. Thank you so much for having me here. Yeah. You're most welcome. So today, what we want to speak to you about, as you've already noticed in my intro, is basically cryptocurrency. But what I want to pose, the questions that I want to pose to you are with regards to Pakistan's adoption of this. Now, as you already know, there was a report recently that came out, which identified Pakistan as the third economy that has the most adoption in cryptocurrency, Vietnam being on top. So this is something that's really interesting, Shoaib, because people in Pakistan either think that crypto is a way to easy money, they think it's a scam, or they understand absolutely nothing about it. So could you please speak to this, to the level of understanding of cryptocurrency in Pakistan? Yes. Yeah, thank you so much for that. I just want to say that in the Pakistan, when we heard the first word about the crypto or the Bitcoin or something like that, that was the year at around 2013, 2012, a year or two later than the inception of the Bitcoin. So the thing is that, as we have already seen, like all of a lifetime, just like the stock market, over the experience that I had in there, that people tend to say that ये बिल्कुल स्कैम है और मतलब आप इसमें जाएंगे, you're gonna get stuck, this is something that is not physical. And for me, the most surprising thing is that the biggest and the most dynamic currency in the world was and is the figure of a controversy here. So that was something that we've been facing because my experience in the stock market, we have seen that people tend to follow the same, the patterns, the same things that, they used to, and they just really reluctant to the change. It's kind of a human nature, you can say, but a lot of been scamming, going on in there, and there's a really problem, like we have faced the adoption of it, because people be like, सबसे पहला जो हमारे पास एक मसला आ रहा था वो ये आ रहा था कि हमारे पास ट्रेडिंग करने के लिए कोई लेजिटिमेट प्लेटफॉर्म्स नहीं थे यहाँ पर पाकिस्तान में, कि जब पाकिस्तान से आप बैठ के कर सकें, क्योंकि द फर्स्ट वन जो सबसे बड़ा एक हमारे पास प्लेटफॉर्म था वो था MTGOX का. It got hacked and a lot of people lost the money in around that was 2013 2014 में. उसके बाद ये था कि एक तो करेंसी पे इस तरीके से लेके जो है लोगों का एतमाद जो है बेहाल नहीं हो रहा था, और दूसरी तरफ जो ये था कि हमारे पास एक तरीके से रिसोर्सेज नहीं थी उसको ट्रेड करने के लिए, बिकॉज पीपल बी लाइक के अगर हमें करेंसी को ही ट्रेड करना है तो व्हाई शुड
shouldn't we, just buy and hold the US dollar or, Kuwaiti dinar or something like that instead of a Bitcoin, which we don't know anything about. So that was the main challenge that we've been facing since then. और आज आते आते ये कि थोड़े इसके डायनेमिक्स एक तरीके से चेंज हो चुके हैं. यस, एडॉप्शन है बिल्कुल है, बट मोर ऑफ जो मैंने देखी है, इट वाज मोर ऑफ एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ठीक है, दिस इज माय मेन बिजनेस, आई एम अर्निंग फ्रॉम दैट. और अगर मैं बस एक एक्सपेरिमेंटल के तौर पे अगर मैं करना चाहता हूँ तो मैं उसको ट्रेडिंग के उस पे बोलूंगा. सो यहाँ तक अभी फिलहाल हम फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वी कैन से हम 10-11 साल में जो है यहाँ तक अभी तक आए इसमें. ठीक है, थैंक यू सो मच. और इसी में अगर हम बात करें, आपने अडॉप्शन की बात की है, ठीक है, हमने पब्लिक अंडरस्टैंडिंग की फिर भी बात कर ली है, बट द वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट स्टिल एग्जिस्ट विद इन पाकिस्तान इज स्टेट लेवल अडॉप्शन. उसमें आप देख लें रिसेंटली, आई थिंक इट वाज द बिगिनिंग ऑफ दिस, इट वाज अक्टूबर का शुरू, जब सिंध हाई कोर्ट केम अप विद अ डिसीजन के आपने ना the state has to intervene and basically make the adoption of cryptocurrency easier, and they make legislation that allows for that to happen. So आपको लगता है कि स्टेट इसमें रिएक्ट सही टाइम पे कर रही है, या जो पेस क्रिप्टो करेंसी की एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है जो इतनी क्विकली अडॉप्शन भी पकड़ रही है, डू यू थिंक दैट द स्टेट इज इंटरवीनिंग एट द राइट पेस, और अगर कर रही है और अगर नहीं कर रही तो वो उसमें क्या इश्यूज है? देखें, अगर मैं क्रिप्टो करेंसी की बजात खुद अगर उस पर बात करूं, बिकॉज यहाँ पे थोड़ी सी एक डेविएशन आती है कि क्रिप्टो करेंसी इज एक्चुअली द करेंसी दैट वाज बेस्ड when there is no legislation involved or any controlling body involved in that. तो वहां पे अगर बात करी जाए तो it might be an insult to the injury you can say, but since we are living in Pakistan, यहाँ पे मतलब ये कि थोड़ा हमें अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और इस तरीके की चीजें के लिए. तो अगर स्टेट अगर उस चीज पे जाके कुछ उसको एक तरीके से लीगलाइज करती है और यू कैन से एडॉप्शन बढ़ाने के लिए एक तरीके से, आई वुड से नॉट लीगलाइज बट अवेयरनेस बढ़ाने के लिए उसके अगर काम करती है, तो आई बिलीव दैट वुड बी मच हेल्पफुल ऑन द बोथ साइड्स, from the consumer side as well as from the state side, you can say. तो इसी में मैं फिर I'll add another caveat to this. एक तो मतलब when we say cryptocurrency, most people just assume कि Bitcoin की हम बात करें, which you know is not true, right? इतने ज्यादा altcoins हैं, thousands में नंबर करते हैं, और उनके प्रोजेक्ट्स के सारों के डिफरेंट एम्स होते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. कुछ लोगों का होता है कि वो डिसेंट्रलाइज करें सिर्फ ट्रांजैक्शंस को, कुछ प्राइवेसी फोकस्ड होती हैं, कुछ के और पर्पसेस होते हैं विद अडॉप्शन इन टर्म्स ऑफ having agreements with different setups and so on and so forth. So आपको क्या लगता है when a government is legislating these issues, so do we need to look at cryptocurrency as a blanket issue, या फिर हम specific coins को देखें हम किस तरह आगे चलें? वो एक बड़ा challenging सा issue है. आई बिलीव के अगर गवर्नमेंट इस तरीके के इसको लेती तो सबसे पहले जो हमें करना पड़ेगा वो ये करना पड़ेगा कि हमें इसको फाइनेंशियल इंक्लूजन में मतलब ये कि ऐड करना पड़ेगा कि ठीक है, दिस इज समथिंग दैट शुड बी रेगुलराइज एंड टैक्स्ड ऑल्सो. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें ये नहीं करना है कि ठीक है आज श्रेय बैठ के ट्रेडिंग कर रहा है, आज आप बैठ के ट्रेडिंग कर रहे हैं, वी जस्ट अर्न द मनी एंड वी जस्ट केप्ट इट आवरसेल्फ, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट शुड गो टू द स्टेट ऑल्सो. और एट द एंड ऑफ द डे वी शुड थिंक अबाउट कि हमने पाकिस्तान के लिए क्या किया है. तो just like the remittances, just like the dollars flowing from the outside to the inside, तो इस तरीके से अगर यहाँ पे profitability एक होती है तो the first thing would be the financial inclusion in my perspective, in my understanding. And second के हमारे पास जो एक सबसे बड़ी चीज जो मिसिंग है वो ये कि इसका एक टैक्स हेड बेसिकली कि ठीक है, if you are earning the profit, you are आप उसको अपने बैंक अकाउंट में एक तरीके से उतार रहे हैं and you just कीप द मनी. ठीक है, ये मेरे प्रॉफिट्स हुए हैं, मैंने पूरे साल में ये मैंने कमाया. उसके बाद दैट शुड बी लाइक एक कोई अच्छी एक कोई परसेंटेज एक टैक्स की होनी चाहिए जो कि दोबारा उस पे जाए. और जस्ट लाइक एफबीआर में और इस तरीके से ये कि सारी वो चीजें आपकी एक तरीके से लीगलाइज भी हो, एक तरीके से सुकून भी हो, और एक सेकंड सोर्स ऑफ द अर्निंग लोगों की हो. ठीक एक तरीके से कि ठीक है मैं इसका टैक्स दे रहा हूँ, दिस इज समथिंग द स्टेट ऑल्सो नोज अबाउट, दिस इज नॉट समथिंग फिशी दैट्स गोइंग ऑन अकाउंट्स. तो ये चीज जो है अंडरस्टैंडिंग दोनों तरफ से डेवलप होना जरूरी है, स्टेट की तरफ से भी एंड आई बिलीव कंज्यूमर की तरफ से भी. इसमें एक फाइनल एस्पेक्ट, आपने टैक्सेशन की बात की, एफपीआर की बात की है. डू यू थिंक समथिंग लाइक परहैप्स कुछ कंट्रीज में, मैं आई वाज लुकिंग इनटू दिस, एंड सम कंट्रीज यूज द कैपिटल गेन्स टैक्स एज अ मींस टू टैक्स क्रिप्टो प्रॉफिट. So do you think something like that can be replicated in Pakistan and it can work?
या ऑफ कोर्स एक बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि कैपिटल गेन्स पे अगर आप टैक्स कर रहे हैं तो देखें दो तरीके की उसकी नौयत है। एक जो कि somebody just like started with the 1 lakh rupees and they started trading and they keep gaining, और जस्ट एक पीएनएल है जो कि वो अकाउंट में अपना रियलाइज कर रहे हैं। सेकंड ये कि कुछ लोग एक तरीके से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह उसको रखते हैं कि ठीक है, दे जस्ट कीप डंपिंग द मनी, बाइंग द बिटकॉइंस और इथेरियम। ठीक है, एक प्रॉफिट आया, सैलरी में से अलग सेविंग निकाली, जस्ट लाइक वी यूज्ड टू डू विद द गोल्ड और विद द कमोडिटीज के जब पैसे हुए तो हमने गोल्ड खरीद के रख लिया। तो जस्ट लाइक दे कीप बाइंग द सम कॉइन्स। तो उसकी जो कैपिटल गेन पे एक वो आता है कि ठीक है, मैंने 1 जनवरी 2021 को लेट सपोज इथर मैंने बाय किया एंड 31 दिसंबर तक मैंने उसकी जो भी वैल्यू हुई उस कैपिटल गेन पे अगर मैं टैक्स दे रहा हूँ, रिगार्डलेस मैंने उसमें कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं करी, बट उसने मेरी एक वैल्यू बढ़ाई है, उसने एक मेरा एक वेल्थ को इंक्रीज किया है, तो उस पे अगर टैक्सेशन होती है दैट्स फाइन इनफ, बिकॉज इधर वो एक सेफ भी है, वो आपका एक होल्डिंग के परस्पेक्टिव से भी एक अच्छा है, एंड फॉर द लॉन्ग टर्म आप उसको जो है एक तरीके से स्टेट को भी जो है आप रिटर्न कर रहे हो, एक आप एक पैरिटी को आप इनहेंस कर रहे हो एक अपनी स्टेट में। इंटरेस्टिंग। आपने यू आल्सो मेंशन्ड एजुकेशन एंड द लैक ऑफ जो क्रिप्टो करेंसी में भी हम देखते हैं, और टेक्नोलॉजीज में भी ऑफ कोर्स, बट क्रिप्टो करेंसी इन पर्टिकुलर इज अ बिग इशू इसमें। एंड आई नो पर्सनली दैट यू आल्सो बीन अ मेंटर एंड एन एजुकेटर इन दिस फील्ड। आप इन लोगों को आप ट्रेडिंग सिखाते हैं, आप उनको इंडिकेटर्स रिकॉग्नाइज करना सिखाते हैं, आप उनको साथ साथ मार्केट जो इंटरनेशनल मार्केट्स और जो बाकी मार्केट्स हैं उनकी कनेक्शन सिखाते हैं। तो कुड यू स्पीक अ बिट मोर अबाउट दिस कि मेंटोरिंग वगैरह में आपने क्या पर्सनली चैलेंजेस फेस किए हैं, enablers क्या हुए हैं, आपको बेनिफिट्स क्या नजर आए हैं, so on and so forth? Actually, I used to teach the patterns and all that indicators in the stock market. मतलब ये कि जब हम stocks वगैरह को study करते थे, that was a story of 4 or 5 years ago. तो जो सबसे पहले एक हमने जब वहां पे एक चैलेंज जो फेस किया था वो ये था कि that was a room full of traders that I was speaking to. ठीक है, तो you can use the jargons, the people that what you're talking about एक स्टॉक, क्योंकि चार्ट्स पे जो भी चीज चल रही है वो देखें वो हर मार्केट में सेम है, रिगार्डलेस वो फॉरेक्स हो, वो स्टॉक्स हो, वो क्रिप्टो हो, वो ईटीएफ्स हो, व्हाटएवर इट इज। तो वहां पे एडॉप्शन का एक मसला वही था कि जो स्टॉक मार्केट के जो एक वेटरन्स थे, दे वर pretty much reluctant to move towards the cryptocurrency because it was something, that's understandable, that was pretty hard to understand कि what's going on, इसके पीछे मतलब क्या है, एक कोई regulatory body नहीं है, how am I supposed to do the like fundamental analysis मैं इसके कैसे करूंगा, इतनी volatility ज्यादा है। तो एक वो चीज थी। तो वहां पे जब हम मूव हुए इस जगह पे एनेबलर्स पे एक पूरा कोर्स बना के मैंने लॉन्च किया, एंड वी वर लाइक ठीक है, नाउ इट्स टाइम दैट पीपल शुड नो अबाउट, एंड दे शुडंट बी ट्रेडिंग व्हाइल हैविंग अ मिक्सर ऑफ अ स्पेकुलेशन कि ठीक है बस ट्रेड लगाई, लग गई, लॉस हो गया। नो, इट शुडंट बी लाइक दैट, दे शुड नो व्हाट दे आर डूइंग बिकॉज दिस इज देयर हार्ड अर्न मनी एंड दिस इज नॉट समथिंग टू बी जोक्ड अबाउट। और जो यहाँ पे हमने चैलेंजेस बेसिकली फेस करे वो ये कि people fail to understand pretty much, or they fail to believe that these markets could be predicted. These market something like you should trapped in a bottle and get the magic of it. So सबसे बड़ा बस एक वो था कि इसमें लोगों को समझाने के लिए कि भाई ठीक है, आप बिल्कुल बेस से आप शुरू करते हो, जब आप एक कॉमन मैन से जब आप बात करो तो यू शुड स्टार्ट विद दैट के अंडरस्टैंडिंग उसकी क्या है, आप इससे किस तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं, और उनको एक फाइनेंशियल फ्रीडम का जो टेस्ट होता है वो एक करवाना। आई बिलीव के इफ द 1% गॉट द बेस्ट ऑफ इट, आई बिलीव दैट वुड बी द सक्सेस ऑफ माय लाइफ in Pakistan, I would say. Yeah. That's excellent. Let's go back a bit to the state. अब आपने बात की है दो तीन चीजों की, एक तो हमने legislative absence की भी बात की है, हमने lack of education की भी बात की है, ठीक है, और हमने फिर उसके बाद जो what I see as a potential problem is कि जब आपकी lack of education होती है तो then you have people जो when they're needlessly spending their money, मतलब it is an outflow of Pakistani currency from how I imagine it, right? So how can the states come in and in तीनों issues को, legislation वाली तो आपने बात की कि आप tax करें, ठीक है, but is there a way उस legislation में भी to protect the average consumer, the average Pakistani from issues like this? And secondly, जो आपने जो बात की है उसके बाद beyond जो second level पे, वो भी can the state somehow help with education in this? And should the state be engaging with people जो मतलब आपके जैसे हैं, जो knowledge base रखते हैं, तो किस तरह एंगेज करे स्टेट आप जैसे लोगों के साथ?
आई बिलीव के देखें, ट्रेडिंग में सबसे पहले लोगों को इंक्लूड कराने से ज्यादा बेहतर है कि उनको ये बताया जाए कि इससे हम लोग एक तरीके से जो एंड गोल है वो हमारा क्या होना चाहिए, दैट्स व्हाट द फाइनेंशियल फ्रीडम इज स्टैंड्स। सो आई थिंक कि सबसे पहले एजुकेशनल उस पे एक हो सकता है कि इधर वो ऑनलाइन टीचिंग हो या ऑनलाइन कोर्सेज हो या इस तरीके से जस्ट टू, और वो फ्री एक तरीके से सर्विसेज हो, या उसके जो भी स्टेट जो भी चार्ज करता है दैट शुड बी द बेयर मिनिमम। कि अगर कोई 10,000 15,000 रुपए लेके भी आ रहा है, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द डॉलर्स, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द रुपीज, तो वो भी उस चीज उस एजुकेशन सर्विसेज को जो है वो एक तरीके से अफोर्ड कर सके, और वो समझ सके कि ठीक है ये कोई स्पेकुलेशन नहीं है, इट्स नॉट समथिंग गैम्बलिंग, एंड दिस इज द प्योर लाइक यू नो एक अच्छी एक साइड बिजनेस के तौर पे है। तो आई शुड नो व्हाट्स गोइंग ऑन। अगर मुझे क्रिप्टो में समझ आता है तो ठीक है, वरना मुझे जो नॉलेज मिली है वो मैं स्टॉक्स पे भी अप्लाई कर सकता हूँ, वो मैं फॉरेक्स पे भी अप्लाई कर सकता हूँ, तो मेरे आगे बहुत सारे ग्राउंड्स है खुलेंगे। तो आई थिंक दैट शुड बी द वे दैट स्टेट शुड स्टार्ट, कि यहाँ से देन उसके बाद वो दूसरी चीजें आती है कि ठीक है वो रेगुलराइज चीजें हो रही है। एंड हमने एक चीज ये भी देखी है कि एज एज आई हैव सीन इन माय लाइफ कि जब स्टेट जब कोई एक स्टेप लेती है तो उससे मिलियंस ऑफ एक पीपल का जो इंटरेस्ट डेवलप होता है कि ठीक है स्टेट कर रही है तो कुछ होगी इसमें बात, कुछ एक पोटेंशियल होगा, कुछ एक इसमें सही होगा, अगर मैं करूंगा तो एटलीस्ट मुझे आके कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं ये तो स्कैम है। नो, इट्स नॉट अ स्कैम। इट माइट बी द समथिंग दैट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग fully at the moment, at this moment of time. जी, that's actually interesting. So the state can basically step in and वो जो validity और reliability वाला factor है वो education के through impose कर सकता है perhaps, जो मतलब any educational expert can, but perhaps वो trust factor इतनी जल्दी develop नहीं होता जो state के साथ automatically develop हुआ होता है. That's interesting that you bring that up. अच्छा, finally जी जी, sorry, please go on. Yeah, because I believe कि knowledge is the best asset you can own in that case. Yeah, I know, that's interesting. अब इसमें finally अब मैं because I was researching for this topic and I have been for quite a while, I've been looking at this. There's this underground economy almost now of cryptocurrency in Pakistan where ये trading वगैरह चल रही है, right? And it's mostly based on P2P, यानी कि person to person transactions. Because अभी भी I believe that since the system does not exist, you can't, बाकी दुनिया में आप अपने cards वगैरह attach कर सकते हो. PayPal has crypto transactions now. So many payment vendors वगैरह have included cryptocurrencies within to their format. So do you see this happening in Pakistan in the near future at any point? I think it should be because एक तरीके से ये कि काफी ईज लोगों को हो सकती है, क्योंकि स्पेशली जो कि ट्रेडर्स तो हैं लेकिन जो कि होल्डर्स हैं उनके लिए कि ठीक है, इफ somebody is buying the coins or investing in Bitcoin or Ethereum as their retirement fund, they can use it by ease। कि अगर आप कोई वीजा कार्ड के थ्रू या पेपॉल के थ्रू अगर इस तरीके से आप वो कर रहे हैं इसको इंट्रोड्यूस, दे कैन जस्ट गो ऑन अ शॉपिंग और गो ऑन अ डिनर एंड दे जस्ट स्वैप द कार्ड एंड यूजिंग देयर बिटकॉइन और द क्रिप्टो करेंसी एज देयर एक तरीके से पाकिस्तान में ये कि उसको डायरेक्टली आप एक कन्वर्ट करके वो कर रहे हो, उसको यूटिलाइज कर रहे हो। बट अगेन ये चीज तब होती है जबकि आपकी एडॉप्शन ऑलरेडी हो चुकी हो, जब आपकी टैक्सेशन इंप्लीमेंट हो चुकी हो, जब आपको एक तरीके से रिकग्निशन मिल चुकी हो क्रिप्टो करेंसी की। तो आई वुड से कि कंज्यूमर के एंड से ये दैट वुड बी द लास्ट थिंग and might be in next I hope कि जल्दी हो जाए, but I can see 5 से 8 साल 10 साल तो ये चीज में I believe के लगेंगे। ठीक है। So इसमें by the way just another interesting thing, I believe I saw this news जो Bank Alphala was including Ripple in its transaction model. I don't know if you came across this, but that's also something that I've been interested in because people seem to be catching up थोड़ा सा, मतलब प्राइवेट वेंचर्स वगैरह भी, आपने खुद मतलब इतने एक्सपर्ट्स हैं, आप खुद एक एक्सपर्ट हैं, यू नो दैट ये एक इकोनॉमी है जो बर्जन करके बड़ी होती जा रही है। बट स्टेट का अभी भी रिएक्शन जो है, मतलब आई मेंशन्ड यू बिफोर द रिकॉर्डिंग स्टार्टेड के वो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जैसे अभी अडॉप्शन की हम फेज में नहीं है कहीं भी, तो हाउ डू वी गेट थ्रू एज टू पॉलिसी मेकर्स देन, बिकॉज दैट्स आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ, राइट? कि पॉलिसी मेकर्स को हम किस तरह विन ओवर करें इस पूरी इकोनॉमी की तरफ? देखें, मैं पहली वाली बात को मतलब इस तरीके से करता हूँ कि इफ वी टेक द ट्रेजरी डिपार्टमेंट इन दिस कन्वर्सेशन, तो देखें आप उस हैंड पे बैठ के आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं, ठीक है, यू बाय सम प्रॉपर्टी, यू नो बाय सम स्टॉक्स एंड ऑल दैट, आप एक तरीके से अपने बेसिकली जो आपका पोर्टफोलियो होता है उसको आप डाइवर्सिफाई कर रहे होते हैं।
if you talk about 2013, if you talk about 2017, the price, if you have invested at that time, अगर आप Ethereum और आप Bitcoin, I'm not talking about anything else, I'm just talking about the biggest two countries currencies at the moment. तो $7,000 पे, $8,000 पे अगर आपने BTC को अगर आप बाय किया होता, और यू जस्ट पुट द मनी ऑफ सम, लेट्स से कि कोई आप इंस्टीट्यूट्स के अगर आप बाय करते, लेट्स से कि अगर हम बैंक अल्फला की एग्जांपल ले लेके, ठीक है, आई एम जस्ट गोना पुट द $10 million और $10 million इन द बिटकॉइन, और अगर हम आज एक बात करते हैं उस पे कि देखें $7,000 पे उस टाइम पे बिटकॉइन, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोज टू 50,000, दैट्स द मल्टीपल टाइम्स ऑफ द इंक्रीमेंट, नॉट इवन सम द परसेंटेज की हम बात करें कि नहीं 6 या 7% नहीं है, यहाँ पे बात चल रही है 6 or 7 टाइम्स इंक्रीमेंट की। तो स्टेट को अगर वो करने के लिए, स्पेशली अगर मैं इधर इंडोर्स करना चाहूंगा, तो आई वुड से कि जितना काम मतलब इसको नॉलेज देने के लिए अगर वकार ज़काने किया है, तो दैट्स प्रीटी लाइक वहां पे एक बात करना जो है एक वो नहीं होगा, बिकॉज ऑफ कोर्स he did a lot for the मतलब ये कि एक कंट्री के लिए उसके अडॉप्शन के लिए उस तरीके से। तो पॉलिसी मेकर्स के लिए सबसे अच्छी ये बात है कि देखें टाइम अभी भी नहीं निकला है, वी आर जस्ट इन फॉर लाइक 9 to 10 years, अभी भी वो फेजेस हैं आने के लिए, और ज्यादा दूर की बात नहीं है। आज इस साल में मतलब ये कि बीटीसी ने हाईएस्ट अपना $69,000 का एक हिट किया है, एंड लास्ट ईयर अप्रैल में इट वाज $3,500। तो यू कैन सी दैट ऑलमोस्ट लाइक 20 टाइम्स अगर उसने इंक्रीज किया है। तो हम एक बात करते हैं कि ओके वी जस्ट पुट द मनी असाइड, हम एक जो इन्वेस्टमेंट की एक बात आती है, तो अगर हम उस पर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करते तो व्हाई शुडंट बी इंक्लूड इन दैट। आप उस प्रोजेक्ट्स में नहीं जाएं जो कि एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स हो, लेकिन आप उन प्रोजेक्ट्स में तो जा सकते हैं जो कि प्रूवन हो चुके हैं, बिकॉज देयर विल बी नो बिटकॉइन, बिकॉज अगेन उसके पीछे आइडेंटिटी, उसके पीछे एक तरीके से कुछ नहीं पता है कि क्या था, एक तरीके से इट्स जस्ट अ करेंसी, यू एंड मी जस्ट रनिंग एंड द माइनर्स आर जस्ट बीइंग द ऑडिटर्स ऑफ इट। लेकिन अगर बात उसकी आती है इकोनॉमी की, जहां पे हमें एक डिविएशन मिलती है वो ये मिलती है क्योंकि इकोनॉमिक्स इसको ये कहते हैं कि बिटकॉइन जो है अभी अपने सेकंड फेज में है अपनी मनी के, जो कि होती है प्राइस डिस्कवरी के, शायद वो इससे कभी आगे निकल भी ना पाए। सो you know it's also a good thing and it's also a bad thing, but हमारे लिए अगर हम अपने उस पर्सपेक्टिव से क्या देखते हैं, तो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। ठीक है, अगर वो अपनी प्राइस डिस्कवरी में मे बी 5 years later it might be in a 6 figures, maybe 10 years later it might be in $1 billion, who knows, but just for the investment purpose I believe for the next 10 or 15 years we should board that train and we shouldn't leave it while just watching just come and go. अच्छा, finally I don't want to take up too much of your time. One last question. इसमें cryptocurrency में what I mentioned in the introduction as well, one of the things that is important is what the project stands for, right? कि जो decentralization है, जो आपकी the idea that you're no longer relying on forex currencies, जहाँ पे money supply government के हाथ में है, और वो अब recently you're looking at the inflation rates जो skyrocket करे, not just in Pakistan but beyond. Many experts have pointed that money supply is the reason for this. आप पाकिस्तान आप यूएस में देख लें, आप टर्किश का जो लीड है और इंटरेस्ट रेट की लोअरिंग की सिचुएशन देख लें, all of this is heading towards a situation where more people across the world are saying कि नहीं, this is why cryptocurrency is the answer, because it's decentralized, it's not controlled by the same people that would do the lending and the borrowing and so on and so forth. तो पाकिस्तान में मैं नोटिस करता हूँ कि ये डिबेट इतनी ज्यादा सरफेस नहीं करती। Why do you think that is? Do you think it's because of, for example, हमारे पे different rules और regulations भी आते हैं, there's tighter for us, right? So decentralization is a little harder for us. So do you think it's because of that, या generally अभी जो हम adoption के lags discuss कर रहे थे उसकी वजह से? आई थिंक जो सबसे मेजर एक इशू है वो यही है कि सिंस इज डिसेंट्रलाइज्ड, तो अच्छाई के साथ जो है उसके साथ एवरीथिंग हैज अ टू साइड्स ऑफ द स्टोरी, कि उसको वो किस तरीके से सर्कुलेट किया जा रहा है, और मतलब ये कि ऑफ कोर्स आप उसको टैक्सेशन में आप रखना चाह रहे हैं, आप सब कुछ करना चाह रहे हैं, तो एफएटीएफ का भी वहां पे इश्यूज आ रहे हैं। सो दैट्स लाइक अनदर पार्ट ऑफ द स्टोरी, बिल्कुल वो है कि, लेकिन आई बिलीव कि अंडरस्टैंडिंग इसमें जरूरी है कि जहां पे मनी सप्लाई की बात आ रही है, तो देखें पीछे अगर कोई एक सेंट्रल बॉडी है, तो at the end of the day they can print more money, but if you're talking about the bitcoin, if you're talking about some close ended, मतलब उसकी अगर ब्लॉकचेन की अगर उसमें बात करी जाती है, आज 10-11 साल बाद जो है 19 मिलियन जो है बिटकॉइन माइन हो चुके हैं।
सिर्फ 2 मिलियन अभी रहे, जो कि लास्ट जो अब बात करी जाती है दैट वुड बी 150 इयर्स लेटर वो है। तो उसको एक तरीके से मनी सप्लाई रुकी हुई भी है, मतलब ये कि सप्लाई उसकी, और दूसरी तरफ उसकी स्कार्सिटी बढ़ रही है, तो उसकी वैल्यू भी एक इम्पैक्ट कर रही है कि ओके माइनर्स के एंड से भी सब कुछ हो रहा है। ईथर की अगर जहाँ पे बात करी जाए, दूसरे एक मेजर आल्ट कॉइन्स की अगर बात करी जाए, तो आई वुड से कि एडॉप्शन इज द मेन कॉज। एंड सेकेंडली जो मेरी अंडरस्टैंडिंग में वही है कि पीपल नीड टू अंडरस्टैंड के हाउ द मनी वर्क्स ओवरऑल, और करेंसी को और एसेट को डिफरेंट करने में अभी जरूरी है। अभी अगर हम बिटकॉइन या ईथर की अगर हम बात करते हैं, तो वी आर स्टिल टेकिंग इट मोर ऑफ एन एज एन एसेट इंस्टेड ऑफ अ करेंसी। एंड आई बिलीव शायद हमारे लाइफ टाइम में हम इसको एसेट के तौर पे ही ले रहे हो, हम करेंसी के तौर पे ना लो, बिकॉज वी आर इन दिस साउथ एशियन, मतलब ये कि इस जोन में जो है हमने कमोडिटीज में इन्वेस्ट करना सीखा है, हमने करेंसीज में इन्वेस्ट करना सीखा है, गोल्ड में लाइक इस तरीके से, और यूएस डॉलर रख के वो करना। तो I think we might take it cryptocurrency also for the next 30-40 years. I can see that. Yeah. Thank you so much for this excellent conversation, Shoaib. I think our audience will be pleased with the fact कि आपने जो legislative lags हैं वो आपने इतनी अच्छी तरह discuss किए हैं. You brought out actual policy solutions जहाँ पे आपने taxation specifically mention की है कि this is how the government should go about adopting it. You also talked importantly about the role that educationists and traders like you play in this important critical time, जिस वक्त मतलब adoption आपकी बहुत ज्यादा हो रही है और knowledge और awareness जो है वो कम हो रही है या stagnant रह रही है, right? So that's something that I think that our audience needed to hear. I'm hoping that at one point आप हमारे studio भी आएंगे, we'll have more excellent discussions like this. Sure, would love to. Yeah. बिल्कुल. And I'd also like for you and our audience to subscribe to the Jinnah Institute channel. We'll hopefully be having more conversations like this. Thank you so much for attending this, and hopefully we'll thank you so much for having me. It's really an honor, and it was a really healthy conversation for me also. So yeah, I was looking forward to see you again and talk to you, and yeah, in this topic. Yeah, sure. Thank you, Shoaib. Thank you.